श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद। 12 मिनट। Sir, the budget 2025 presented by the Finance Minister is a clear example of the government's misplaced priorities. This budget has neglected the most pressing issues facing our nation, such as unemployment, farmers' distress, and the rising cost of living. The lack of attention of these critical areas is a stark reminder of the government's disconnect from a common man. Although the Finance Minister is calling the agricultural sector as the first engine of growth, but the allocation for the agricultural schemes has been a dip. The allocation to the Department of Agriculture and Farmer Welfare has come down to rupees 3,905 crore from the revised estimate in 2024-25. For Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana crop insurance scheme, the allocation this time has dropped by 3,621.73 crore. It has got 12,242.27 crore this time against 15,864 crore for the last revised estimates. The allocation for the fertilizers departments have also been cut by 26,500.25 crores rupees. The budget neglected the demand for legalized minimum support price MSP, which we are demanding time and again, legalized support MSP by Dr. M.S. Swaminathan's formula and the comprehensive scheme to waive farm loans. The National Mission on Oilseeds does not find a mention in the agriculture budget figures and merely 1,000 crore has been allocated for the mission of pulses. The allocation for food subsidy is also more or less than the same as last year, 2 lakh crore, indicating that there is no hope of pulses or oil seeds being included in the public distribution PDS, public distribution system. This could have offered stable and affordable prices for consumers, allowing them to spend their income of on their items. Even, sir, the Manrega, which is a very prestigious scheme of the UPA government, that Manrega also remains stagnant at 86,000 crore despite demands from workers' unions and also the corporate sector for an increase of wages under the scheme. Much said, but the budget speech on the new crop-based mission, but the allocation for these minimum they have done, and the allocation for the cotton technology mission is only 500 crore, sir. The mission for pulses is 1,000 crore, the mission for vegetables and fruits is 500 crores, and the national mission on hybrid seeds is 100 crores. A new Makhala board which is established recently with the allocation of 100 crores has been announced for Bihar. But the already existing commodities, sir, commodity boards are cash strapped. उनके पास पैसा नहीं है. For example, between 24 and 25, 25 and 26, allocation for the coffee board, especially for Karnataka and Kerala people, I would like to say, coffee board has remained unchanged. Rubber board allocation has risen by just 40 crores and allocation for the spice board has risen just 24 crores. Allocation for the coconut development board has been cut from 39 crores in 2023 and 24 to 35 crores in 2025 and 26. While the budget speech mentioned agriculture several times, but hardly matched financial allocation. सिर्फ उनको बोलते हैं लेकिन प्रत्यक्ष करते कुछ नहीं है. उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है. The schemes and the programs are starved of resources, and the real issue for that confront the farmers and the sector remains sidelined. Further, the economic survey admits that the real wages have not risen for 80% of workers in the last 5 years. So this is what the PLFS says. So rather a contradictory conclusion, the September 2024 report of the periodic labor force survey
revealed that 23-24, the youth unemployment rate for those aged 15 to 29 years has increased by 10.2%, and unemployment rate among graduates was 13%. This is a shame, because youngsters, all young folks in our country, they are without the work and they are without the job. For a country that adds 60 to 70 lakhs new jobs, seekers each year, a country that has 46% of its workforce now in agriculture, majorly as this guy's unemployment, country has 10 crores youth not in education, employment or training, and about 25 crore unemployment. The budget does not seem address and challenges of the job creation. We demand that more comprehensive approach to addressing the nation's problem, rather than just providing tokenistic relief and speak about the movies. It's better we need a budget that prioritize our needs and common man, boost employment and entrepreneurship that addresses the critical issues facing our nation. Sir, अभी मैं थोड़े शब्द हिंदी में बोलना चाहूँगी। आपके समक्ष में हिंदी में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों भाषा समझ में आती है। वित्त मंत्री जी ने आपके भाषण में कहा कि सरकार के लिए नारी ये 4 समूहों में एक फोकस है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तस्वीर देखे तो श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की स्थिति ग्रामीण वास्तविकता है, रूरल रियल वेजेस के कारण महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना कर पड़ता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के वास्तविक मासिक आय में गिरावट आई है। ये बजट महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है, इसका विश्लेषण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। बजट आवंटन में कमी सर, सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 3% वृद्धि की है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 24-25 में 21,200 करोड़ रुपए बढ़ाकर उन्होंने 21,960 यानी ओनली 500-700 करोड़ रुपए उन्होंने बढ़ावा दिया है। और जब हमारे देश में महिलाओं को और बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जेंडर बजट में गिरावट, अगर जेंडर बजट की बात करें तो वर्तमान वर्ष में 1,12,396 करोड़ रुपए से घटकर वो 1,05,535 करोड़ हो गया है। इस गिरावट का असर पीएम आवास योजना, शहरी और गरीब परिवार योजना, एलपीजी कनेक्शन के बजट पर भी पड़ा है। दूसरी ओर वर्तमान वर्ष की तुलना में पीएम आवास योजना ग्रामीण या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बजट में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। जल जीवन शक्ति मिशन महिलाओं के लिए में वो भी आवंटन कम कर दिया है। जल जीवन शक्ति मिशन में महिलाओं के लिए 31% आवंटन निर्धारित किया है, जबकि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में महिलाओं के लिए वो 49% था, 49 से 31 तक आए हैं। जल जीवन शक्ति मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह आवंटन महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महिलाओं के लिए आवंटन कम है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यह सुनिश्चित करती है कि 100% आवंटन महिलाओं को निर्देशित हो, क्योंकि सभी घर महिलाओं के नाम पर हो जाए। हालांकि योजना शुरू होने के बाद अगर सरकारी डाटा हमने देखा तो 1 फरवरी 2025 में केवल 23% घर ये महिलाओं के नाम पे हो गए थे। ये दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को बजट से हटा दिया गया है और इसके लिए कोई भी आवंटन नहीं रखा गया। ये बहुत ही बुरी बात है, गंभीर चिंता का विषय है और ये महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर बजट में महिलाओं के लिए बहुत कम लाभ है। सर, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि 4-5 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, मैं और सागरिका घोष जी, कि हमें बोलना किस विषय पे है, हमारी जो साथी है यहाँ पे हमारी मित्र, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ किसके विषय पे ऊपर बोलेंगे, तो मैंने बोला मैंने बजट के ऊपर तो कभी बोला नहीं है, इस बार तैयारी करके बोलूंगी। तो हमारे दूसरे एक साथी है, उन्होंने आकर वहाँ बोला, अरे क्या बोलना है उसमें, महिलाओं को अगर बजट पे बोलना है तो किचन के लिए बोलो। तो हम दोनों स्तंभित हो गए कि अगर एक हमारा साथी सांसद
हमारे जैसे महिला सांसदों को इस तरह से बातें करता है कि सिर्फ आप किचन के ऊपर बोलो, तो इसका क्या मतलब होता है सर? कुर्सी में यहाँ महिलाएं भी बैठती है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 8वां लगातार बजट उन्होंने पेश किया है महिला होते हुए भी। हमारी नेता सोनिया जी है, उनकी नेता ममता बनर्जी है, इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा जी हुई है, और तो भी आप बोलते हैं कि महिला है तो किचन के लिए बोल। तो हमें कितना प्रूव करना होगा और कितनी बार हमें प्रूव करना होगा? राम ने भी। माननीय सदस्य, इस समय तो हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमन जी पर ही चर्चा कर रहे हैं। मैं तो निर्मला जी की सराहना कर रही हूँ सर, निर्मला जी के लिए बोल रही हूँ, निर्मला ताई के लिए। सर मैं सिर्फ मानसिकता दर्शाती हूँ, ये मानसिकता दर्शाती है पुरुषों की कि महिलाओं के लिए अभी भी अगर हम यहाँ पे भी आ गए तो भी हमें नीचे देखने की जो उनकी मानसिकता है वो कम होनी चाहिए। ऐसे सब कोई भी इसमें दाया बाया नहीं है, सब सेम मानसिकता है। महिलाओं के लिए जब हम निर्णय लेने का जब तक अधिकार नहीं दिया जाता सर, महिलाओं को जब तक अधिकार लेने का निर्णय नहीं दिया जाता तब तक वो पूर्णता स्वयं पूर्ण हुई, ऐसे हम नहीं मानते। जब अमेंडमेंट करके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया था 92 में, तो हमारे नेता राजीव गांधी जी के विजन से ये यहाँ के देश में, हमारे भारतवर्ष में पंचायत राज के माध्यम से 33% आरक्षण लागू हो गया था। और मुझे अभिमान लगता है कि उस पंचायत राज के बिल के माध्यम से मैं एक जिला परिषद से लेके यहाँ संसद तक आ सकी। इसका अगर श्रेय जाता है तो ये बिल की जाता है, जो महिलाओं को हमें अधिकार दिए गए हैं उनको जाता है, हमारे नेताओं को जाता है, चाहे सोनिया जी हो चाहे राजीव जी हो, इन्होंने ये हमें पहली बार दिया। इस सरकार ने भी बिल लाया है, इस सरकार ने भी लाया है बिल, मैं वही बताने वाली, इस सरकार ने भी लाया है बिल, महिला आरक्षण नहीं लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल उन्होंने लाया। ये तो बिरबल की खिचड़ी पकाने वाली बात है सर। ये कब बिल आएगा? बिल आ गया, पास भी होगा, बिल आ गया और पास भी हो गया, लेकिन सेंसस कब होगा, फिर डिलिमिटेशन कब होगा, उसके बाद में बिल कब पारित होगा, और फिर हमारी महिलाओं को 33% कब मिलेगा? ये सब जरतर यानी क्वेश्चनेबल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अगर करना है तो तुरंत सेंसस करें, और जैसे हमारे नेता राहुल जी ने बोला है, जातिवार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, जातिवार जनगणना करे और हमारे महिलाओं को और हमारे बाकी सभी जातियों को उनका अधिकार दे दे, जिससे समाज के हर क्षेत्र में अच्छी तरह से बांटी जाएगी पावर। मैं अनुरोध करूंगी निर्मला ताई से कि इस बजट में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रावधान देने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।